किया था आई थिंक स्टैंडर्ड जो दोनों इलिप्स हैं वो उनकी बात कर ली थी और उसके बाद फिर हमने शिफ्टेड इलिप्स के क्वेश्चंस किए थे क्या? नो सर। Yeah, मतलब I ऐसा think we कोई have केस? done. Capital X is equal to X minus 2, like हाँ that. हाँ राइट राइट राइट, ये वाले क्वेश्चन कर लिए हमने। यस सर। ओके हमने ये भी नोट किया क्या कि vertices divide line segment joining S1 and N1 in is to 1 ratio internally and externally. Yes, sir, we Yes, did sir. that. Okay. If equations of major and minor axes are given, then how to write equation of Phillips? ये note किया? If major axis is Lx plus My plus N equal to 0 and minor axis is Mx minus Ly plus K equal to 0. Yes, sir. If yes, sir. Mx equals Ly plus lambda the whole square over a square plus the minor axis of squared over a square plus major axis square over b square equals to L square plus equals to Mx. slopes coefficient square. Yes, sir. हाँ राइट ओके। तो फिर नेक्स्ट तो इसमें फिर अपन ने लास्ट में कवर कर ही लिया। तो नेक्स्ट इज पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एलिप्स हमने जो सर्कल और पैराबोला में डिस्कस किया है एग्जैक्टली सेम है। इफ वी हैव टू चेक पोजीशन ऑफ लेट्स से कि एलिप्स इज x square upon a square plus y square upon b square minus 1 equal to 0। तो हमने जो कैपिटल S एक्सप्रेशन बोला है दैट एक्सप्रेशन इज x square upon a square plus y square upon b square minus 1। ठीक है। If given point whose position is to be checked is p x1 y1, then we'll find power of this point और पावर ऑफ पॉइंट को हम S1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पावर ऑफ पॉइंट इन दिस केस इज x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस y1 स्क्वायर by b स्क्वायर माइनस 1। S1 पॉजिटिव है तो पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड कहां लाई करेगा? Outside. Inside. आउटसाइड। Outside, sir. Yes. सेम रिजल्ट है पैराबोला एंड सर्कल में। On this, okay, inside. एलिप्स में तो बहुत ऑब्वियस है कि एलिप्स का इनसाइड का रीजन कौन सा है, आउटसाइड कौन सा है, बिकॉज एलिप्स एक क्लोज कर्व है। पैराबोला और हाइपरबोला ओपन कर्व है, तो हमने वहां पे डिस्कस किया था पैराबोला में। और इन जनरल हम ये बोलते हैं कि फॉर एवरी कोनिक फोकाई और फोकस ऑलवेज लाई इनसाइड ऑफ द कोनिक। अब वो चाहे पैराबोला है या एलिप्स है हाइपरबोला है, फोकस ऑलवेज इनसाइड ऑफ द कर्व होंगे। ठीक है, फोकाई लाई इनसाइड ऑफ द एलिप्स।
find alpha if point alpha comma alpha plus 2 lies in a smaller region made by an ellipse and a line. So should we solve the equation of the line with the ellipse, or is there some other way, sir? solve क्यों करना है? Solve करने का benefit क्या है? So then we can find the points of intersection, sir, and then find which is the smaller region. So So like if the line passes to the center, we'll know that it divides equally, and if it passes through near one of the foci, that foci part of the ellipse would be the smaller region. No, in this particular case, ellipse is a standard ellipse, right? Yes, sir. We can easily draw this line on xy plane. Yes, sir. It would be 0,3. Ellipse is this one, and the line is ये 6 है, तो ऐसे कुछ आ जाएगा. Yes, sir. And it would pass through 0,3. ये लाइन मैंने ऐसे क्यों ड्रॉ किया समझ आ रहा है? Because this point is Slope would be negative. this point is 5,0, this point is 0,4, and for line x and y intercepts are 4 and 3, right? तो 4 वाला पॉइंट 4,0 ये हो जाएगा. तो हमें भी इंटरसेक्शन पॉइंट से कोई यूज नहीं है. क्वेश्चन ने बोला कि हमें वो जो पॉइंट है P वो इसके इस वाले पोर्शन में लाई कराना है. समझ आ गया क्वेश्चन? Smaller region made by these two curves. yes, sir, but so mathematically, so how do we find the smaller region? Mathematically यही तो क्वेश्चन है, और है तो बस ये सिंपल क्वेश्चन है, टफ नहीं है. This point, let's say point name of this point is P. तो P का पोजीशन ये शेडेड पोर्शन है. That means P ellipse के इनसाइड होना चाहिए. फर्स्ट Yes, कंडीशन. sir. तो पावर ऑफ पॉइंट नेगेटिव कर लेंगे, एक इनइक्वेशन आ जाएगा. सेकंड, डायग्राम से बहुत क्लियर है कि O and P ओरिजिन 3x plus so will we say 3x plus 4y minus 12 should be greater than 0 for the second equation? और ऐसा क्यों बोला? बिकॉज O and P जो है वो लाइन के रेस्पेक्ट में अपोजिट Opposite side, sir. दोनों कंडीशन लगा लेंगे. अब ये हो सकता है मैंने क्योंकि रैंडम डेटा कुछ भी दिया है, तो यहाँ पे अब कैलकुलेशन थोड़ा सा इरेशनल टर्म्स में आ जाए, बट सॉल्वेबल तो है ही. समझ आ गया? इसको सॉल्व करके कुछ कुछ आएगा, और वो जो इंटरवल आएगा उसका इस आंसर के साथ इंटरसेक्शन ले लेंगे. अभी क्योंकि कैलकुलेशन मुझे लगने मतलब देख के लग रहा है कि बेकार हो रही है, इसलिए मैंने किया नहीं सॉल्व. बट देखना कंप्लीट मेथड समझ आ गया. Yes, sir.
और ये वाला क्वेश्चन जेई ने मतलब मैं तो एलिप्स के लिए लिखा हुआ है, बट जेई ने सर्कल के लिए पूछा हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था कि सर्कल गिवन था और एक लाइन गिवन थी और एक पॉइंट ऐसे कुछ था इन टर्म्स ऑफ अल्फा, और उसे सर्कल के स्मॉलर पोर्शन जो बन रहा है लाइन के थ्रू उसमें लाई कराना था। तो सेम ही कंसेप्ट है, तो सर्कल का पावर ऑफ पॉइंट नेगेटिव कर लेंगे और सर्कल का सेंटर और ये वाला पॉइंट लाइन के रेस्पेक्ट में अपोजिट साइड में लाई करेंगे, ये अपन इंश्योर कर लेंगे। ठीक है। इनफैक्ट जेई एडवांस ने पूछा हुआ एक क्वेश्चन, उसमें ऐसे था, हाँ एक ही बात है वैसे तो, उसने क्या है कि एक सेट ऑफ पॉइंट्स गिवन था, कोऑर्डिनेट्स गिवन थे पॉइंट के, 4-5 पॉइंट गिवन थे, और ये चेक करने का वो बोला था कि इन चारों पांचों में से कितने पॉइंट्स जो है वो एग्जैक्टली कितने पॉइंट्स इन दोनों सर्कल और लाइन का जो स्मॉलर रीजन है उसमें बन रहा है। इंडिजर टाइप का क्वेश्चन था। तो अगर सेट में 5 पॉइंट तो हमको पांचों पॉइंट के लिए चेक करना पड़ेगा और पांचों पॉइंट के लिए दोनों ही कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी। लेकिन मैथमेटिकली अगर हमने कोई एक पॉइंट चेक किया और मान लो उस पॉइंट का पावर सर्कल के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव आ जाएगा, तो उस पॉइंट का फिर लाइन के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज हमने ओनली उन्हीं पॉइंट्स को एक्सेप्ट करना है जो दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो सर्कल के भी इनसाइड होना चाहिए और ओरिजिन यानी कि सर्कल के सेंटर के रेस्पेक्ट में वो पॉइंट लाइन के अपोजिट साइड में होना चाहिए। बट अगर वो सर्कल के बाहर चला गया तो ये वाली कंडीशन चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। समझ आ रहा है? Yes, yes. ऑक्सिलरी सर्कल एंड इसेंट्रिक एंगल। अब ये ऑक्सिलरी सर्कल क्या चीज होती है? पहले तो हम अगर एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 की बात कर रहे हैं। अब ए ग्रेटर देन बी है तो भी ये इक्वेशन है, ए लेस देन बी है तो भी ये इक्वेशन है। तो हमें इसका पैरामेट्रिक फॉर्म चाहिए एलिप्स का। हमने जब फर्स्ट टाइम पैरामेट्रिक फॉर्म डिस्कस किया था तो ये डिस्कस किया था कि कोई भी एक कर्व जो है उसके इनफाइनाइट पैरामेट्रिक फॉर्म्स पॉसिबल हैं। उन इनफाइनाइट पैरामेट्रिक फॉर्म में से कोई सा भी एक फॉर्म अपन को स्टैंडर्ड रखना था। तो जैसे अपन ने पैराबोला में पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए 80 स्क्वायर 280 दैट इज x इक्वल टू 80 स्क्वायर y इक्वल टू 280 स्टैंडर्ड मान लिया। और पैरामेट्रिक फॉर्म का मीनिंग क्या है कि ओनली वन अननोन t, इन दिस केस t के टर्म्स में पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं जो एवरी वैल्यू ऑफ t इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो हमने कहा कि y तो 280 है और x 80 स्क्वायर है, तो दिस इज LHS इज इक्वल टू RHS फॉर एवरी वैल्यू ऑफ t। तो वैसे बताओ कि इस केस में So we हम could try a cos theta, x is equal to a cos theta and y is equal to a sin theta. या करेक्ट, फिर उल्टा। in this case x equals to a cos theta and y equals to b sin theta where theta is parameter. We can take this as parametric form और यही स्टैंडर्ड फॉर्म लिया हुआ है। और उल्टा भी बात सही था कि हम x इक्वल टू a sin थीटा y इक्वल टू b cos थीटा भी ले सकते हैं बिकॉज वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। बट मैंने कहा ना कि कोई भी एक लेना है तो मैंने ये ले लिया। और सर्कल के केस में भी ऐसे ही था कि सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसका पैरामेट्रिक फॉर्म x इक्वल टू a cos थीटा y इक्वल टू a sin थीटा। इन दिस केस x इक्वल टू a cos थीटा y इक्वल टू b sin थीटा। थीटा इज पैरामीटर and this theta belongs to 0 to 2 pi and this theta is called अच्छा अभी तो मैंने पैरामेट्रिक फॉर्म लिखा है तो यहां पे अपन बोलेंगे कि therefore any point on this ellipse can be taken as p theta
जैसे हम पैराबोला के पॉइंट को पी टी से डिनोट करते हैं, वेयर टी इज पैरामीटर, तो इन केस ऑफ एलिप्स वी डिनोटेड बाय पी थीटा एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट आर a cos theta, b sin theta. Theta is called eccentric angle of point P. Theta is called eccentric angle of point P. ठीक है, तो वहां पे पैराबोला वाले केस में पैरामीटर टी का कोई नाम नहीं है, बट ए और सर्कल में भी जब हमने सर्कल में पैरामेट्रिक फॉर्म a cos थीटा a sin थीटा डिस्कस किया था, तो थीटा को बस पैरामीटर ही बोला था। इन दिस केस हमने थीटा को एक और बोल दिया, क्या कि थीटा इज इसेंट्रिक एंगल ऑफ पॉइंट P। तो ये इस एलिप्स का पैरामेट्रिक फॉर्म है। अब फिर ये थीटा का सिग्निफिकेंस क्या है ज्योमेट्रिकली इस एलिप्स के लिए, ये समझने के लिए हमने उससे पहले एक सर्कल डिफाइन किया विच इज कॉल्ड ऑक्सिलरी सर्कल। मतलब कि सबसे पहले पैरामेट्रिक फॉर्म आ गया, अब पैरामेट्रिक फॉर्म का ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ रहे हैं अपन। पैराबोला में हमने पैरामेट्रिक फॉर्म का ज्योमेट्रिकल मीनिंग नहीं समझा था, बिकॉज वो 80 स्क्वायर 280 था। लेकिन जब एंगल थीटा दिख जाता है तो पता लगा कि थीटा का कुछ ना कुछ तो यूज होगा, तो वो यूज क्या है थीटा का वो देख रहे हैं बस। सर्कल में पता है थीटा का रोल क्या था? सर्कल में join a line from the origin to the point and then the angle formed with positive x-axis. करेक्ट ये थीटा है। If this point is p theta, Not origin, so center. center of the circle. A circle described on major axis of diameter is called auxiliary circle. A circle described on major axis as diameter is called auxiliary circle of ellipse. और ये डायग्राम में अगर हम देखेंगे तो A1 A2 जो है वो एलिप्स का डायमीटर, एलिप्स का मेजर एक्सिस हो गया। इस मेजर एक्सिस को डायमीटर लिया है तो जो सर्कल बनेगा वो इस तरह से बन जाएगा। अभी हमने जो डायग्राम बनाया है ये फर्स्ट एलिप्स का डायग्राम है। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इस सर्कल का इक्वेशन बताओ। x square plus y square is equal to a square. Because a is greater than b, तो रेडियस a हो गया, तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज x square plus y square equal to a square. तो for first ellipse when a is greater than b, its auxiliary circle is x square plus y square equal to a square. And for second ellipse when a is less than b, its auxiliary circle is x square plus y square equals b square. b square. ठीक है। सेंटर ऑफ द सर्कल एंड सेंटर ऑफ द एलिप्स, यानी कि एलिप्स एंड सर्कल दोनों ही कंसेंट्रिक है, सेम सेंटर है दोनों का। अब थीटा का रोल ये है कि ये पॉइंट क्यू थीटा लिया, दैट मींस दिस एंगल इज थीटा। क्यू थीटा इज ऑन द ऑक्सिलरी सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। फिर इस क्यू थीटा से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ऑन मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स।
this perpendicular is intersecting ellipse at point P. And now coordinates of this point. तुम देखो क्या आते हैं बताओ. तो q theta is any point on auxiliary circle x square plus y square equal to a square. That means coordinates of point q theta are a So cos. it's a cos theta. So And then you take for P would be a cos theta, b sin theta. Right, because coordinates of point q are a cos theta comma a sin theta. yes, sir. QPM is a vertical line, so every point on this line has x coordinate as a cos theta. So x coordinate of point P is a cos theta. Y coordinate find करने के लिए हम इस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट इलिप्स में पुट कर लेंगे. तो x के प्लेस पे a cos थीटा पुट किया तो y का वैल्यू फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग b sin थीटा आ जाएगा. तो अभी अगर अपन डायग्राम से समझें तो फिर पॉइंट P का इस थीटा से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है. पॉइंट P का रिलेशन Q से है और Q का रिलेशन थीटा से है. तो यहाँ पे अपन बोलते हैं कि these P and Q points are called corresponding points of each other. जस्ट एक टर्म में कोई खास यूज तो आता नहीं है. तो फर्स्ट में हमने पहले पैरामेट्रिक फॉर्म डिसाइड किया, उसके बाद फिर पैरामेट्रिक फॉर्म में सिंस थीटा आ रहा है तो थीटा का ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझने के लिए डायग्राम बनाया. तो इन दिस केस फर्स्ट स्टेप कि हमने सर्कल पे एक क्यू थीटा पॉइंट लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स a cos थीटा कॉमा a sin थीटा हो गए. अब इस पॉइंट से एलिप्स के मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एंड दैट परपेंडिकुलर इज इंटरसेक्टिंग एलिप्स एट P. तो पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट भी सेम ही हो गया जो पॉइंट Q का x कोऑर्डिनेट है, और फिर पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट एलिप्स की इक्वेशन से फाइंड कर लिया. ठीक है. तो जैसे हमने पैराबोला में बात की थी कि जब भी हमें टेंजेंट इज ड्रॉन एट एनी पॉइंट, a chord is drawn from point P from any point P on the parabola. तो जब भी पैराबोला पे कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट कंसीडर करना है तो हम उस पॉइंट को पैरामेट्रिक फॉर्म में लेंगे. तो सेम चीज यहाँ पे भी है. तो ये सारा कोनिक के लिए सेम ही है कि जब भी हमें किसी भी कोनिक पे कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट कंसीडर करना है, अब उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करने को बोल सकता है, नॉर्मल ड्रॉ करने को बोल सकता है, कॉर्ड को बोल सकता है, कुछ भी बोल दे, तो अपन उस पॉइंट को इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर ले लेंगे. और इलिप्स के केस में पैरामेट्रिक फॉर्म फर्स्ट इलिप्स के केस में a cos थीटा कॉमा b sin थीटा है. अगर सेकंड इलिप्स का पैरामेट्रिक फॉर्म लें, सेकंड इलिप्स का, तो बता सकते हो सेकंड इलिप्स के लिए पैरामेट्रिक फॉर्म क्या बनेगा? a sin theta b cos theta. a sin थीटा b cos थीटा, बिकॉज फर्स्ट टू सेकंड में आने के लिए मेथड है कि विल इंटरचेंज x एंड y एज वेल एज a एंड b. Yes, तो sir. पहले तो x एंड y को चेंज किया तो ये b sin थीटा कॉमा a cos थीटा बना, और फिर Yes, a sir. और b को भी चेंज किया. बट अब हमने कहा कि सिंस हम अभी स्टैंडर्ड की तो बात करने रहे, कोई भी अगर पैरामेट्रिक फॉर्म की बात करनी है तो सेकंड इलिप्स के लिए भी ये वाला पैरामेट्रिक फॉर्म चल जाएगा. ठीक है. Yes, sir. तो हम सेकंड में भी अभी सेम यूज कर सकते हैं, और अदरवाइज जो अपना प्रॉपर मेथड है वहां से चेंज करके a sin थीटा कॉमा b cos थीटा बनेगा, वो यूज कर सकते हैं. हमने लास्ट पेज पे नोट कर ही लिया कि जो थीटा का वैल्यू है ये 0 to 2 पाई लाई करेगा. अच्छा, एक पॉइंट एक नोट और लिख लो.
सेकंड वाले नोट से पहले एक बात बताना कि अगर हमें एक पेयर ऑफ लाइन का इक्वेशन गिवन है, पेयर ऑफ लाइंस सेकंड डिग्री वाला, तो इस पेयर ऑफ लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? So can you repeat? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री गिवन है पेयर ऑफ लाइन का, एंड वी हैव टू फाइंड ओनली So we'll simultaneously solve the two equations. So partial differentiation of the we'll first partially differentiate given equation with respect to x one as with a x, one with y. So then we get two equations. One will be x square second degree, one will be y square second degree, then solve together. after differentiating both the equations will be in degree 1. Given equation is in second degree. No, so but and if I differentiate with it, oh no, wait, so yeah, so y square is a constant, sir. Yes, sir. हाँ, y square is a constant. तो ये जो मेथड तुमने बोला है ना, this exactly same method is applicable to find center of the ellipse as well. ठीक है, सेंटर ऑफ एलिप्स हमने वहां भी डिस्कस किया था कि एक्चुअली ये इसका हमने रीजन डिस्कस नहीं किया था कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये कंसेप्ट ऑफ एनवेलप्स आता है जो अपने सिलेबस में नहीं है, बट वो जो सेम मेथड है, जो पेयर ऑफ लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने का मेथड है, वो सेम मेथड कोई भी एक जनरल सेकंड डिग्री का इलिप्स गिवन है तो उसका सेंटर फाइंड करने के लिए है, और उसको बनाकर फर्स्ट इलिप्स के लिए वेरीफाई करें तो इस इक्वेशन को विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे, तो विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया तो ओनली 2x अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा। विद रेस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा, और इन Y दोनों का equals 0, इंटरसेक्शन x पॉइंट equals 0,0 आ जाएगा। तुम लोगों के सेकंड ट्रैक में क्या चल रहा है? लिमिट्स, limits continuity differential. So limits got over we are with ओके। Continue. तुम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ लिया क्या इससे पहले? Yes, sir. yes sir. ओके।
25 sin squared theta. ऑप्शन बनाने के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. इस केस में तो ये सर्कल इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा. रुको, एक बार क्वेश्चन मैथमेटिकली रॉन्ग है. यहाँ पे 4 करना. So, but then answer for E is not coming a whole number. So Yes, so you ठीक है, could कोई look. Okay, sir. कुछ समझ आ रहा है क्या करना है? Yes, so I found the position of the foci, sir. And so because we have a circle whose diameter is S1, S2, then so if the foci are plus minus U21, 0. So the Correct. radius of the circle is U21. And because they share the same center, that means the equation of the circle is x square plus y square equals 21. ठीक है, then Now, so now I'm trying to find the intersection point, sir, but I think there's going to be 4 of them, sir. intersection point
सॉल्व करना, मतलब करेक्ट तो है बट थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा इन दिस केस। अभी तक तो करेक्ट बोला, एक बार देखना बोर्ड पे कि क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एक इलिप्स है और एक सर्कल है, और अभी दिस इलिप्स इज इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट 4 पॉइंट, तो P इन चारों में से कोई से भी प्लेस पे हो सकता है। तो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग P का इसेंट्रिक एंगल बताना है। इफ वी टेक लेट P बी 5 cos थीटा, 2 sin थीटा, ये समझ आया हमने? 5 cos थीटा 2 sin थीटा कहां से लिया? Yes, sir. Because ax cos theta, b sin theta. तो हमें बस Can you go theta back 1 second? I want to take down the options. in this case directly we can say that OP distance is root over 21. S1 S2 distance is root over 21. Yes, sir. तो OP distance is root over 21. हमें O पॉइंट पता है 0,0, P पॉइंट हमने एज्यूम कर ही लिया, बस डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लो तो सीधे थीटा ही आ जाएगा। हमें इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ सर्कल एंड इलिप्स सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो ये हो गया 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा को हम 4 माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 21। ये हो गया 25 माइनस 4, 21 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 21 माइनस 4, 17। तो cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 17/21 आ गया। तो देखो यहां तक का कैलकुलेशन वाला पार्ट तो क्लियर है। Yes, sir. अभी Yes, sir. अभी बस लास्ट बचा कि तुम्हें इन चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा आंसर है। वहां पे मैंने लास्ट में लिखा हुआ है कि cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 17/21 है। तो इन चारों में से कौन कौन सा आंसर है, और अभी हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का Sir, यूज A or B, A and B, sir. A एंड B, C क्यों नहीं है? Actually, yes, sir, A and B, sir. It can't be C, sir, because the domain of sine is from minus pi by 2 to pi by 2, sir. And you said that eccentric angle is 0 to 2 pi, meaning it has to be positive. So you Correct. can't do. And same reason for option D, sir. ओके, लेट्स से कि ऑप्शन डी में पाई प्लस कॉट इनवर्स लिखा होता। Oh, मतलब- wait, sir, yeah, it's 2 pi, sir. Yes. So अभी A, B, मान- C, D. So A, B, D. नो नो नो, अभी मान लो 2 नहीं है, अभी 2 नहीं है तो आंसर होगा क्या? डी ऑप्शन। No, sir. ओके, माय क्वेश्चन इज कि अपन दोनों केस ले लेते हैं। चलो मैं तुम्हें, क्योंकि तुम्हें बस ये देखना है कि ITF का कौन से फंक्शन का रेंज क्या है। तो एक और ऑप्शन है एंड लास्ट ऑप्शन इज पाई प्लस कॉट इनवर्स माइनस रूट ओवर 17/2। तो वैल्यू तो देखो कॉट इनवर्स के अंदर अगर लिखेंगे तो 7 रूट ओवर 17/2 ही आ जाएगा, करेक्ट है वैल्यू। तो बस ये देखना है कि एंगल Yes, कौन से क्वाड्रेंट में है। तो डी वाला एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है? So fourth quadrant, sir. डी इज So it would be third quadrant. डी इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, कॉट इनवर्स नेगेटिव। अच्छा, हाँ, yes, sir. एंगल इज पाई माइनस थीटा, तो ओवरऑल दिस एंगल इज 3 पाई माइनस थीटा, बट 3 पाई माइनस थीटा जो है वो 2 पाई को एक्सीड कर गया, इसलिए आंसर नहीं होगा डी ऑप्शन। और ई वाला एंगल जो है दिस इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, बिकॉज ये पाई है और ये नंबर खुद पाई माइनस थीटा है, तो ओवरऑल ये 2 पाई माइनस थीटा बन रहा है, और 2 पाई माइनस थीटा लेस देन 2 पाई है, तो ई ऑप्शन आंसर हो जाएगा। So, but why can't it be A or B, sir? नहीं, ए और Oh, भी तो okay. है। ए ऑप्शन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, बी ऑप्शन सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। ये वाला एंगल पाई बाय 2 से लेके पाई के बीच में जो इंटरवल है उसमें कहीं लिखा हुआ है, बट दिस एंगल बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 टू 0, एंड माइनस पाई बाय 2 टू 0 इसेंट्रिक एंगल की रेंज में नहीं आता, तो ये आंसर नहीं होगा। दिस एंगल इज ओवरऑल, दिस एंगल इज 3 पाई प्लस समथिंग या 3 पाई माइनस समथिंग, यानी कि ये
5 पाई बाय 2 से बड़ा एंगल है और 5 पाई बाय 2 से बड़ा हो गया तो 2 पाई से बड़ा हो गया, तो ये आंसर में नहीं आएगा। लेकिन लास्ट वाला जो एंगल लिखा हुआ है ये 2 पाई माइनस समथिंग लिखा हुआ है, 2 पाई माइनस समथिंग इसेंट्रिक एंगल का आंसर आ जाएगा। देखना अभी आईटीएफ का जो रेंज है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, वो उसका यूज समझ आ रहा है? Yes, sir. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में व्हेनेवर मतलब ट्रिग इनवर्स एक्स में व्हेनेवर एक्स इज नेगेटिव then sorry if whenever x is positive then every trig inverse x belongs to Quadrant 0 one. first quadrant, but if x is negative then sine inverse, tan inverse and cosec inverse belongs to minus pi by 2 to 0 and cos inverse, sec inverse and cot inverse these belongs to pi by 2 to Second pi quadrant, second sir. quadrant। अब यहाँ पे दोनों चीजें थी, एक तो क्या कि हमें सर्कल और इलिप्स को सॉल्व करने के प्लेस पे हमने बस सर्कल से ये समझ लिया कि जो पॉइंट पी होगा वो सेंटर से √21 डिस्टेंस पे होगा, और सिंस पॉइंट पी का इसेंट्रिक एंगल फाइंड करना है तो हमने पॉइंट पी को डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ थीटा ले लिया और डिस्टेंस फॉर्मूले से कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड कर लिया, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमने आईटीएफ की रेंज का यूज करके ऑप्शन चेक कर लिया कि कौन सा ऑप्शन आंसर है। लास्ट क्लास में हमने PS1 प्लस PS2 इक्वल टू 2a ये प्रूव किया है क्या? PS1 प्लस PS2 इक्वल टू 2a ऐसा कुछ? I No, don't sir. think so. No, sir. We did. We proved the how you say. So we proved the ratio in which 90. the focus is divided by 40. But no, we didn't do this. Sir. So S1 and S2 are the power of the foci. No, S1 and S2 are the foci, मैं लिख रहा हूँ आगे। Oh, so PS1 is distance from point to focus one. Right. Wait, so then if they give us S1, how will we know so if it's focus or so the power of a point? नहीं, ये स्टेटमेंट से समझ आएगा, जैसे क्वेश्चन ने मेंशन किया कि S1 एंड S2 आर फोकाई, तो S1 एंड S2 आर नेम ऑफ 2 पॉइंट्स। Okay, sir. एंड वन मोर थिंग कि कभी भी क्वेश्चन में पावर ऑफ पॉइंट के लिए मतलब ये S1 S और T ये तो हमारा नोटेशन है, हमारा शॉर्टकट है, ये स्टैंडर्ड नहीं है। Oh, okay, sir. ठीक है, हम बोलते हैं कि SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर इज इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, तो ये हमने शॉर्ट फॉर्म बनाया हुआ है। Understood, sir. For ellipse, show that PS1 plus PS2 is equal to 2a, where P is any variable point on the ellipse, S1 and S2 are its foci, and 2a is length of major axis. ठीक है, अब बताओ अप्रोच क्या? So take P as a cos theta, B sin theta, and take S1 as AE comma 0, S2 as minus AE comma 0, E as √1 minus B square by A square. And so ठीक है। you then expand from, so just let me try, sir. One second. Okay, one more thing बताओ, how will you find PS1 distance? So we have the coordinates of both points, right? So तो डिस्टेंस फॉर्मूले से फाइंड करोगे, नहीं करना है। हमने पैराबोला में भी डिस्कस किया था, अगेन बोल रहा हूं, for every conic whenever we have to find focal distance, that is PS1, we will always use basic definition of conic, which is PS1 PS equal to EPM.
PS अपन को फाइंड करना है और PS इज इक्वल टू EPM. PM क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स. Directrix, sir. तो अपन को सारे कोनिक में यही यूज करना है, बिकॉज अगर तुम डिस्टेंस फॉर्मूले से जाओगे तो कैलकुलेशन ऑलवेज लेंथी होगी, बिकॉज स्क्वायर रूट सॉल्व करना पड़ेगा. और एक बार डायग्राम से देखो कि these are two directrices. पॉइंट P यहां पे लिया कोई भी P थीटा, तो PM डिस्टेंस ये बनेगा. ठीक है, फर्स्ट डायरेक्ट्रिक्स से जाएंगे तो PM डिस्टेंस फाइंड कैसे करेंगे? इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया और इस वाले पॉइंट को Q बोल दिया. तो डायग्राम के अकॉर्डिंग PM डिस्टेंस इज इक्वल टू QM डिस्टेंस माइनस QP डिस्टेंस. QM डिस्टेंस कितना है? A by E. A by E. QP distance if point P is P theta, then A cos theta. अगर अपन ने पॉइंट P को इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन पॉइंट P को पैरामेट्रिक फॉर्म में ना लेके x1 y1 पे लिया होता तो भी सॉल्व हो जाता, बिकॉज इन दैट केस ये A अपॉन E माइनस x1 आता, तो ये नंबर A माइनस E x1 हो जाता. तो ये तो आ गया PS1 डिस्टेंस. और समझ आ गया कि PS1 डिस्टेंस के लिए अपन को कैलकुलेशन कुछ करनी नहीं पड़ी, रूट वाला सिंप्लीफिकेशन नहीं करना पड़ा. ठीक है. सिमिलरली वी कैन राइट एज PS2 एज A प्लस AE cos थीटा, बिकॉज सेकंड वाले फोकस से जब डिस्टेंस की बात करेंगे तो फिर सेकंड वाला Theta डायरेक्ट्रिक्स यूज would be करेंगे. pi minus theta. नो नो नो, पॉइंट P तो सेम ही है. Yes, because the directrix is a minus A by E. Acha, yes sir. So then हाँ. over here, minus A by E minus A cos theta is just distance is so this is mod of that, right, sir? हम ऐसा ट्रीट कर सकते हैं, अदरवाइज प्रॉपरली बोला जाए तो हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं. तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस PQ डिस्टेंस, ये तो सेम ही रहेगा A cos थीटा, बट Q का इस लाइन से डिस्टेंस अब प्लस A अपॉन ही हो जाएगा, तो वो ऐड हो जाएगा. अभी तो हमने डिफरेंस लिया और सेकंड वाले डायरेक्ट्रिक्स के लिए ऐड कर लेंगे. समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes sir. तो दोनों को अपन ने PS1 और PS2 डिस्टेंसेस को ऐड किया तो 2A आ रहा है, where 2A is length of major axis. तो इलिप्स के लिए अपन को ये प्रॉपर्टी जो है वो ध्यान रखनी है कि for any ellipse PS1 plus PS2 is equal to 2A, where S1 and S2 are foci, P is any point on the ellipse, and 2A is length of major axis. So A would be 9. A would be 9. कैसे? So using PS1 plus PS2 is equal to 2. तो 9 कैसे आ गया फिर? अच्छा ओके, तुम A बोल रहे हो, A करेक्ट है, मुझे लगा 2A 9. A तो 9 है, ठीक है.
तो ए तो आ गया, आप बताओ ई कैसे फाइंड कर सकते हैं? So हम्म no, so I was thinking you could use a by e minus a cos theta, but then you don't have theta, so in this case. अभी दोनों फोकाई S1 एंड S2 का डिस्टेंस √2/226 आ रहा है, Yes, sir. और स्टैंडर्ड एलिप्स में S1 S2 कितना होता है? 2ae. समझ आ गया? Yes, sir. दिस अपॉन दिस ई का वैल्यू हो जाएगा। Yes, sir. तो फॉर एलिप्स PS1 plus PS2 equal to 2a, where 2a is length of major axis, तो सेकंड वाला एलिप्स होगा तो PS1 plus PS2 equal to 2b बन जाएगा। अब ये एक रोटेटेड एलिप्स है बिकॉज x into y का टर्म आ रहा है, और इस सिचुएशन में क्वेश्चन ने हमसे इसेंट्रिसिटी पूछा है, तो ये एक बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है और थोड़ा टफ क्वेश्चन भी है। So will you find the center by differentiating? ओके सही है। फर्स्ट स्टेप हम सेंटर फाइंड करेंगे, करना पार्शियली डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। So I got 0, 0, sir. राइट 0,0 आ गया। ठीक है, क्लियर है ना कि डिफरेंशिएट करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू x बन जाएगा So ये। you get 10x plus 6y equals 0, and then 6x And plus 10y 10y plus equals 0. 6x is equal to 0. And then so only solution is 0, 0. अब ये वाला पॉइंट 0,0 है। मान लो हमने इस इलिप्स पे कोई भी एक पॉइंट लिया, अब ये इलिप्स स्टैंडर्ड इलिप्स नहीं है, तो हमने कहा कि ये तो ओरिजिन है बट ये कोई भी एक पॉइंट P है, और लेट्स से कि OP डिस्टेंस इज R, देन पॉइंट P कैन बी टेकन एज R cos थीटा, R sin थीटा, और हम यहाँ पे ये लाइन का पैरामेट्रिक फॉर्म यूज कर रहे हैं। Yes, sir. ठीक है, R वेरिएबल है, R इलिप्स पे पॉइंट P के अकॉर्डिंग मूव करेगा, और थीटा जो है वो इंक्लिनेशन हो जाएगा। तो इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस ऑलवेज R है, अगर हम R को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं तो। डायग्राम के अकॉर्डिंग इफ पॉइंट P इज ऑन द इलिप्स, इफ P lies on It will ellipse, satisfy the equation.
तो ये समझ आ गया। Yes, sir. अभी क्या करें, क्यों लिखा है हमने ये सारा? हमें इलिप्स का इसेंट्रिसिटी फाइंड करना है। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड What? इलिप्स Root 1 Root minus of a square 1 by b minus square. b square by a square. 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। बी एंड ए क्या है? लेंथ ऑफ Length of major axis. सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, सेमी माइनर सेमी मेजर एक्सिस का मीनिंग क्या हुआ कि अगर हमें इस एलिप्स पे सेंटर से मैक्सिमम डिस्टेंस पे जो पॉइंट मिलेगा उसका जो डिस्टेंस होगा वो ए के इक्वल हो जाएगा और मिनिमम डिस्टेंस वाले पॉइंट का डिस्टेंस बी के इक्वल हो जाएगा। और ये जो आर है हमने पॉइंट पी का सेंटर से डिस्टेंस ही बोला है। अगर हम इस एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कर लें तो हमें बी और ए का वैल्यू मिल जाएगा। Yes, sir. और अभी सिंस ये थोड़ा डेटा सिंपल है तो आर स्क्वायर का वैल्यू 8/5 5 प्लस plus 3 3 साइन 2 थीटा लिखा हुआ है। तो आर स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू बताओ कितना आ रहा है? 1. 1। व्हेन साइन 2 1 कैसे आ रहा है? नहीं नहीं, So आर sin स्क्वायर 2. मैक्सिमम, आर स्क्वायर मैक्सिमम कितना आ रहा है? 8 by 5. No, sir. 8 by 2, sir. 4. 8/2 4। आर So स्क्वायर, maximum, yes, sir. 8 by 2. आर स्क्वायर विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन 2 थीटा इज मिनिमम। तो आर स्क्वायर मैक्सिमम 8/5 माइनस 3 आ रहा है और ये And R B minimum के is इक्वल हो जाएगा। R minimum is 1. और ये बी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो समझ आ रहा है कि अपन ने इनको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर क्यों बोला है? बिकॉज एलिप्स के सेंटर से जो मैक्सिमम डिस्टेंस वाला पॉइंट है वो ए यूनिट पे होगा और मिनिमम डिस्टेंस वाला पॉइंट बी यूनिट पे होगा। अपन को ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिल ही गया तो Yes, ई sir. का Then we आंसर can find. ठीक है। Yes, sir. अभी तुम लोग, अभी तो चलो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बट अगर क्वेश्चन है अपन से इस इलिप्स के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स पूछे होते, बता सकते हो? So then we've already found So sir for A and B, sir. So if A is A square, if A is 2, sir, then vertices are 2, 0, so minus 2, अरे स्टैंडर्ड थोड़ी है। right, sir. तो बताओ वर्टिसेस कैसे बनाओगे? पॉइंट पी फाइंड करना है, पी ऑन द एलिप्स है, तो अगर Yes, पॉइंट पी sir. का ये वाला पोजीशन चाहिए, Max value of R, sir. हाँ, तो हम अभी इस वाले पॉइंट के लिए हमने आर मैक्स को 4 कब, आर स्क्वायर मैक्स को 4 कब बोला? जब साइन 2 थीटा को -1 के इक्वल पुट किया, यानी कि थीटा का वैल्यू -π/2 हो जाएगा। Yes, sir. सॉरी, 2 थीटा का वैल्यू -π/2 हो जाएगा। So उसका minus 5 by तो 4. थीटा -π/4 हो जाएगा, तो थीटा को -π/4 पुट कर दो। आर तो पता ही है अपन को, तो करस्पॉन्डिंग पॉइंट आ जाएगा। और दूसरी बार सेम रिफ्लेक्शन, ये वाला जो कर्व है, दिस कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। Yes, Yes, अबाउट sir. ओरिजिन तो नहीं बोलना चाहिए, मतलब सिमेट्रिक का मतलब दिस कर्व इज, जो जैसे जो ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा वैसा ही थर्ड में आ जाएगा, जो सेकंड में आएगा वैसा ही फोर्थ में आ जाएगा। Yeah, it's symmetric to Yes, y sir. equal to x. सिमेट्रिक टू y इक्वल्स टू x, राइट। ठीक है, तो इस तरह से अपन वर्टिसेस फाइंड कर लेंगे। मतलब ये मैंने पहले बोल भी दिया था कि ये वाला क्वेश्चन टफ है, और इन जनरल जेई ने रोटेटेड इलिप्स के लिए इतना डिटेल में पूछा नहीं है, बट ये पर्टिकुलर केस अपन सॉल्व कर सकते हैं। अभी अगर क्वेश्चन कुछ और पूछेगा इसमें कि इसका हाँ, हम इसका ऑक्सिलरी सर्कल भी बता सकते हैं। बताना इक्वेशन X ऑफ square plus Y square equals इक्वल्स टू 4, बिकॉज सेंटर अपन ने फाइंड कर ही लिया और रेडियस यहां से आ जाएगा, तो ऑक्सिलरी सर्कल विल बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4।
पता है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग T1 and T2 on parabola, first parabola क्या होता है? Wait, ध्यान so going back, sir, how would you find the vertices again, sir? R for vertices, R is equal to 2 Yes, sir. and sine 2 theta is equal to -1. Yes, sir. Sine 2 theta is Oh, equal to okay, then sir, then you can find theta, so then plug it in and get P. तो इनफैक्ट दोनों वर्टिसेस के लिए sin 2 थीटा का वैल्यू -1 है, तो sin 2 थीटा इज -1, तो 2 थीटा का वैल्यू -π/2 और 3π/2 यूज कर लेंगे. Understood, sir. So when R is equal to -2, we'll then the corresponding angle would be 2 theta would be 3π/2, right? नहीं, R इज इक्वल टू -2. R तो हमने डिस्टेंस बोला ना, तो अपन R को अच्छा, okay. Yes, sir. बट वही है कि हमने अभी कहा था ना कि अगर हमने एक वर्टेक्स फाइंड कर लिया और सिंस कंप्लीट कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट लाइन y इक्वल टू x, फर्स्ट वर्टेक्स अगर अल्फा बीटा है तो सेकंड बीटा अल्फा हो जाएगा. Yes, sir. हाँ, मैं बोल रहा था कि इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग T1 एंड T2 ऑन पैराबोला, ध्यान है. So we just did this. अभी हमने डिस्कशन में लिखा भी था 2x minus T1 plus T2 2x y minus T1 plus T2 y plus 2a T1 T2 equals 0. 0. वही सेम यहाँ पे ये वाला पॉइंट है कि इक्वेशन ऑफ कॉर्ड joining P alpha, that is A cos alpha comma A sin B sin alpha and Q beta can you tell me equation of अभी तुम्हारा भी सर्कल का TWD हुआ था क्या कुछ दिनों पहले? Yes, sir. तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग P alpha and Q beta ऑन स्टैंडर्ड सर्कल बताओ. I don't remember, sir. इस इक्वेशन को देख के याद आया क्या? Yes, sir. Remember. For circle, put B, replace B with A. Equation is for circle. X cos alpha plus beta by 2 plus Y sin alpha plus beta by 2 equal to A cos alpha minus beta by 2. और for ellipse ये आ जाएगा इक्वेशन.
देखो एलिप्स पे कोई भी 2 पॉइंट्स हैं, पी अल्फा एंड क्यू बीटा, पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट्स गिवन है। तो अगर 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ही पता है तो हम लाइन के 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन का इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 टाइम्स x माइनस x1। वहां सिंप्लीफाई करके ये बन जाएगा सारा। नाउ नेक्स्ट इज कि इफ वी ड्रॉ टेंजेंट्स एट p अल्फा एंड q बीटा, देन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस टेंजेंट व्हिच इज r, वो सॉल्व होने के बाद ये आता है। तो बताना पॉइंट r के कोऑर्डिनेट फाइंड करने का मेथड क्या होगा, प्रूव कैसे करोगे इसे? How will you find coordinates of point r? So you first need to find equation of tangents, right? So at P and Correct. Q. We can find equation of tangents at point P and at point Q by using t equal to 0, Yes, sir. और उन दोनों लाइन को सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। उन दोनों को सॉल्व करने का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो आर आ जाएगा। ये बिल्कुल करेक्ट मेथड है, पर थोड़ा सा लेंथी है बिकॉज हमें पहले इक्वेशंस फॉर्म करनी होंगी, फिर उनको सॉल्व करना होगा, और So we सॉल्व haven't करना done so tangents for ellipse yet. So नहीं पर हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि फॉर एवरी सेकंड डिग्री कर्व every second recurve, yes, sir. Is इक्वेशन t ऑफ equals 0. टेंजेंट एंड पॉइंट फॉर्म इज इक्वल टू 0। बट वन मोर थिंग, हमने कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट भी डिस्कस किया हुआ है। Yes, क्या sir. होता है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट? So when you have two tangents, so over here, so PQ is the chord of contrast, right? So PQ is chord of contact for point R because yes, sir. tangents are drawn from point R. So we'll assume the point R as x1 y1, and for point R PQ line is chord of contact. Equation of chord of contact is t equal to 0. In this case, that equation will be x1 by a square plus y1 by v square equal to 1. तो ये भी PQ लाइन का इक्वेशन है और ये भी PQ लाइन का इक्वेशन है। इन दोनों को कंपेयर करके x1 और y1 का वैल्यू आ जाएगा। देखो समझ आया? So can you explain again, sir? फर्स्ट स्टेप, assume the point R as x1 y1 जिसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। Yes, sir, and then substitute into the chord equation. Yes, sir. Understood. ठीक है, और इसीलिए अपन को ये पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स याद नहीं रखने हैं, ऑलवेज हम इस मेथड से फाइंड कर लेंगे। अगर याद रह गए तो अच्छी बात है, अगर बाय चांस नहीं भी है तो अपन इस मेथड से फाइंड कर लेंगे। तो हमने क्या बोला कि पॉइंट R को x1 y1 लिया, तो दिस लाइन इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट एंड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इज t इक्वल टू 0। तो हमने इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट लिखा और इस लाइन को इस वाले कॉर्ड से कंपेयर कर लिया, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहां से हमें x1 और y1 का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, So 1 second, I have to say note. Done, sir. So 1 minute. Yes, sir. Done.
क्वेश्चन समझा क्या बोल रहा है? No, not really, sir. If chord joining P alpha and Q beta on ellipse, so P alpha and Q beta are any two points on ellipse whose parameters are alpha and beta. If this chord is a focal chord, that means if this line is passing through focus, then we have to find value of tan alpha by 2 into tan beta by 2. तो एक बार डायग्राम देखो क्या बनेगा, एक पॉसिबल डायग्राम बनाओ। फोकल कॉर्ड जिसके एंड पॉइंट्स P alpha and Q beta हैं। But which focus, sir? There's two. इस वाले क्वेश्चन में दो आंसर आएंगे, तो दोनों फोकस से पास कराओगे तो अलग अलग आंसर आ जाएगा। तो अभी तुम डायग्राम में फर्स्ट फोकस से पास करने वाला बना लो। बनाया डायग्राम? Yes, sir. अब ये बताओ, हम मेथड तो देख लेंगे बाद में, बट ये बताओ कि tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2 का वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए कि पॉजिटिव आना चाहिए? So negative, sir. No, Hmm. wait. Yes, sir, negative only. नेगेटिव कंफर्म? Yeah, so because sir, alpha will be sir acute angle, and sir beta will lie in quadrant 3. फोर्थ क्वाड्रेंट। अल्फा विल बी इन, अगर अपन फर्स्ट फोकस से पास करा रहे हैं तो अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और बीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तो वैल्यू So ऑफ why fourth? So wouldn't it be third quadrant, sir? थर्ड में भी लाई करा सकते हो, थर्ड में भी आ जाएगा। Yes, sir. Because I'm but in the one I do, sir, I got third quadrant. बट कुल मिला के पाई से 2 पाई के बीच में होगा, Yes, sir. और फिर बीटा बाई 2 का वैल्यू पाई बाई 2 टू पाई के बीच में आ जाएगा, Yes, sir. और पाई बाई 2 टू पाई का मतलब tan का वैल्यू नेगेटिव हो गया। अब ये बताओ कि इन चारों ऑप्शन में से कौन कौन से ऑप्शंस नेगेटिव नंबर्स लिखे हुए हैं? So C. और कुछ? Answer B. B also, sir. तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव वे में ये अपन मेथड यूज कर लेंगे, बिकॉज जो रिमेनिंग 2 रिजल्ट्स हैं ये दोनों रिजल्ट्स हाइपरबोला के लिए आते हैं। हाइपरबोला के लिए 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई और उसका रेसिप्रोकल आ जाता है। इलिप्स के लिए e माइनस 1 अपॉन e प्लस 1 एंड इट्स रेसिप्रोकल आ जाता है। ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि इलिप्स में e से शुरू हो रहा है तो इसका रिजल्ट भी e से शुरू होता है, e पहले आएगा और फिर 1 बाद में आएगा। जस्ट याद रखने का तरीका है, और इसका कोई और एप्लीकेशन नहीं है। अनलाइक पैराबोला, पैराबोला में क्या था, chord joining T1 and T2 on parabola y square equal to 4ax is focal chord, then एक सिंपल सा रिजल्ट बनता है। क्या होता है वो रिजल्ट फॉर पैराबोला? Sorry, can you repeat the question? If chord joining T1 and T2 on parabola y square equal to 4ax is focal chord, So then T1, T2 equals -1, right? T1 T2 equals to -1, तो वो तो बहुत ही सिंपल रिजल्ट है, इसको अपन मैथमेटिकली यूज कर सकते हैं। लेकिन इलिप्स का जो रिजल्ट है इसको अपन याद तो रख सकते हैं, लेकिन इसको मैथमेटिकली यूज करना पॉसिबल नहीं होगा। तो ये बस इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पस से अपन को याद रखना है। और हमने याद भी कैसे रखा कि वैल्यू ऑफ tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2 नेगेटिव आएगा, और इन टर्म्स ऑफ e इस टाइप का एक्सप्रेशन है, कहीं 1 प्लस ई है, 1 माइनस ई है, e प्लस 1 है, e माइनस 1 है। तो अपन देख लेंगे कि कौन सा आंसर कौन से केस में है। अब प्रॉपर मेथड क्या कि फर्स्ट स्टेप विल राइट इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग p अल्फा एंड q बीटा, जो भी लास्ट पेज पे लिखा ही था, ये वाला इक्वेशन, ठीक है। This chord passes through AE, 0, तो x के प्लेस पे AE पुट करोगे तो देखना, मैं अब एक साथ ही लिख रहा हूं। तो ये बन जाएगा। अब इसके बाद या तो कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज कर लो, या फिर cos a माइनस बी और cos a प्लस बी ओपन करके cos a cos b को एक साइड, sin a sin b को अपोजिट साइड लाके डिवाइड कर लो। कैसे कर लो? तो इसके बाद जब कैलकुलेशन करोगे
तो tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2 का वैल्यू e माइनस 1 अपॉन e प्लस 1 आ जाएगा। मैंने कहा कि आइदर यूज कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो और cos a माइनस बी और a प्लस बी से एक्सपेंड कर दो। और सेकंड वाला फोकस माइनस ए कॉमा 0 से पास कराओगे तो tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2 का वैल्यू e प्लस 1 अपॉन e माइनस 1 आ जाएगा। और ये वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव होगा। नेगेटिव नंबर। तुम लोगों को मेरा ऑडियो अभी आ रहा था क्या इससे पहले? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इसका बैटरी चलो, ये है कॉर्ड वाला केस। So 1 second, sir. After note. Done, sir. फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट P and Q on ellipse, फर्स्ट वाला ellipse है, if eccentric angles of P and Q differ by 2 pi by 3। अभी जो पॉइंट लिखा था वही वाले पॉइंट का लोकस फाइंड करना है, तो मैं एक बार उसको लिख देता हूँ। ये वाला पॉइंट आपने अभी लिखा था, तो इस पॉइंट का लोकस फाइंड करना है अंडर द कंडीशन दैट अल्फा माइनस बीटा इज 2 पाई बाय 3।
So you can replace cos alpha minus beta by 2 with cos pi by 3 for both of them. तो cos pi by 3 यानी कि हाफ, Yes, तो sir. कंपेयर किया तो ये बन गया So 2a cos alpha plus beta by 2 comma 2b. लोकस फाइंड करने के लिए क्या करें? So h square plus k square equals, no, wait. So you could square the two, sir, but right, sir. H by a square plus k by b square equals to 4. तो अभी लोकस का आंसर भी एक इलिप्स ही आ रहा है, और वो जो इलिप्स आ रहा है उसका इसेंट्रिसिटी भी सेम है जो गिवन इलिप्स का इसेंट्रिसिटी है, राइट? Yes, sir. तो अभी तो बने ये पूरा, एक बार देख लो कंप्लीट मेथड, कोई डाउट किसी को पूछना है तो बताओ। No, sir. अब लेट्स से कि नेक्स्ट क्वेश्चन में, अभी तो क्वेश्चन ने, तुम्हें लिखना नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे बताना है। अभी तो क्वेश्चन ने अल्फा माइनस बीटा 2 पाई बाई 3 बोला है। मान लो क्वेश्चन इन दोनों का सम जो है वो 2 पाई बाई 3 बोलता, तो आंसर जो आता उसका शेप बताना है कि वो लाइन आता, सर्कल आता, एलिप्स आता, पैराबोला आता या क्या आता। इफ इन प्लेस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज 2 पाई बाई 3, और बिना पेन चलाए बता सकते हो, एक बार देख के बताओ। So can you repeat? अभी in this question it is given that alpha minus beta is 2 pi by 3 and locus जो आ रहा है वो ellipse आ रहा है, ठीक है? Yes, Now sir. next question is कि if alpha plus beta is 2 pi by 3 then we have to find shape of that locus, कि वो सर्कल, पैराबोला, लाइन और ellipse में से क्या होगा। Okay, so 1 second. So lines, I see. लाइन होगा, और वो लाइन ओरिजिन से पास करेगी यानी कि ellipse के सेंटर से पास करेगी। Yes, sir. बिकॉज अभी Because तो sir, you get, if you substitute cos alpha plus beta by 2 as pi by 3, so then you get x h equals a by 2 cos x, 2 cos, and then that's a constant, sir. And then k is equal to b root 3 by 2 cos, and then constant, sir. So, राइट, तो फिर डिवाइड करके ही cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2 एलिमिनेट हो जाएगा। yes, sir. तो लाइन आ जाएगा, आंसर करेक्ट है। मैक्सिमम पेज नंबर इज 15। तो ये अपना कॉर्ड तक का सारा पार्ट कंप्लीट है। नाउ नेक्स्ट इज लाइन एंड एलिप्स। तो कोई भी एक लाइन का एक एलिप्स के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेक करने का मेथड क्या होगा? So perpendicular distance to the center. No, पर- sir, that's for circles. हाँ, पैराबोला में क्या था? So you found distance to the focus, sir. नो नो नो, अरे ऐसे नहीं रिलेट करो कोई भी चीज को। ओके चलो छोड़ो, ये बताओ कि पैराबोला और लाइन इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? पैराबोला गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, लाइन गिवन है 2x + 3y = 4, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे So फाइंड करेंगे? you take quadratic, you form a quadratic equation with y square, and then you find discriminant, sir, for that. And So- discriminant greater than 0 meaning 2 real intersection points, sir. So chord discriminant equals 0 touches 1 point tangent, d less than 0, then so no touching. बिल्कुल एग्जैक्टली सेम मेथड एलिप्स एंड सेम मेथड हाइपरबोला में वैलिड है। इनफैक्ट ये सेम मेथड एवरी सेकंड डिग्री कर्व के लिए एप्लीकेबल है। तो सर्कल में भी लगा सकते हैं, बट सर्कल में हमारे पास इससे Simpler भी method, sir. इसलिए नहीं लगाते। तो ये वाला मेथड ही हम एलिप्स हाइपरबोला में यूज करेंगे। अगर हमने चेक कर लिया कि वो जो लाइन है ये लाइन कॉर्ड है,
तो लेंथ ऑफ कॉर्ड का जनरल फॉर्मूला 1 प्लस एम स्क्वायर टाइम्स x1 माइनस x2 होल स्क्वायर हो जाता है। हमने पैराबोला में डिस्कस किया था, याद आएगा? Yes, sir. ठीक है, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड अपन मतलब अभी जो हमने पैराबोला में कैलकुलेशन की है बिल्कुल सेम कैलकुलेशन अब यहाँ पे होंगी, सारे स्टेप्स, चाहे वो कॉर्ड का मिड पॉइंट फाइंड करना है, कॉर्ड का लेंथ फाइंड करना है, लाइन का नेचर चेक करना है कि लाइन कॉर्ड है कि बाहर से पास कर रही है, टेंजेंट है, सारा कुछ सेम है। तो एक बार है ना, अपन ये अभी तो नहीं कंटिन्यू कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास के पहले एक तो होमवर्क जो तुम्हारा है पैराबोला की जो भी तुम्हें सॉल्व करना है बुकलेट में वो सॉल्व कर लेना, और एक बार पैराबोला को रिवाइज भी कर लेना। एक्सरसाइज तो मैं क्या ही लिखूं, जितना भी तुमसे सॉल्व हो जाए इतना सॉल्व कर लेना, और पैराबोला के लेक्चर नोट्स को भी रिवाइज कर लेना। अभी तक जो हमने पढ़ा है इलिप्स में वो रिलेट करना कि एग्जैक्टली पैराबोला में क्या क्या चीजें सेम है, क्या डिफरेंट है, और इसके बाद लाइन एंड पैराबोला वो वाला पॉइंट एक बार देख लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसके बाद। अभी कोई डाउट पूछना है? No, sir. No, sir. चलो ठीक है, मैं ये तुम्हें अभी ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ। ठीक है, चलो बाय। Bye, sir.